हाय हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू. माय नेम इज शौबिक दासगुप्ता. ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं. द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द कोविड-19 एंटायर सिचुएशन. The personal problem that I faced is I have met many people who are not aware about what to do, what not to do, and a lot of misinformation is being spread across on WhatsApp and other media as well. So I thought it will be a great opportunity to bring my fellow doctors, my friends who are doctors. I don't belong to that community, but I am fortunate enough to have a couple of friends who are belong to that community, who are in the front line working very hard on this situation. So I have two doctors with me right now, and most probably we'll have another one joining in because they are on the duty. So I got hold of two of them who took time from their very busy schedules. So thank you, Dr. Ritesh and Dr. Badal. uh, the objective of this discussion would be, to make people aware of the simple things about COVID, so that they don't fear and they have the right information. So without taking further ado, we'll start with your introduction, your background, and your experiences a little bit. So, Dr. Badal, you can start. Hello. I am Dr. Aswani. I am an MDS in orthodontics, maintaining a private dental practice in Nagpur. So, Shobik is a good schoolmate. He has been a very good social entrepreneur, and I really appreciate this initiative, Shobik, you are taking to fill in the gap that is being, right now is the time for people to watch local media more, local newspapers, local TV channels, to allay that fear or anxiety जो आपको शायद बॉम्बे और दिल्ली की न्यूज़ दिख के आ रहा. So it is a really good initiative, Shobik, which will help people a lot to gain information not about the overall situation of the globe. What will be more important for people will be to know about the situation of their own city right now. So we'll proceed accordingly. Okay, it makes really more sense, because and that's the objective. People in Nagpur and Pune will try to give maximum information about Pune and Nagpur. Mostly, we'll have more information and data about Nagpur, but whatever we can share will help people of our city. And the best part is, we share. I mean, although we don't share our profession in common, but we share one thing in common, which is we are from the same school, all three of us. Yeah. So I am Dr. Ritesh Kale. I am MBBS MD in internal medicine, and I am a physician. I practice privately in Nagpur, and also I do social practice as well. So I am really thankful to Shobik for bringing us on the one platform and give more information to our family, friends, and more importantly to Nagpurian and Pune people who need the local information firsthand. Great. So we'll start straight away without taking much time on this. So my first question to both the doctors is that the fear which was there initially for coronavirus was very high in, somewhere in March, mid-March, or 20th, 25th of March, when the entire lockdown thing started. But now the fear is reduced, but on the contrary, the cases have increased significantly. So what's your take on this situation, the entire thing, the COVID situation? Yes, before we proceed further, Shobik, I would like to add that field, whatever information giving out is sourced throughout the last 2-3 months. Okay, this may not, this information will be very dynamic, and situations may change. Situations are changing very fast. Like this, these informations right now are hold true as of now, but it is very dynamic. It may change over the next 1 month, and the general things will, keep holding true. Okay. The other thing is, whatever names of hospitals or brands or companies, if they might come up, we declare that we don't hold any stakes in those. So it will be just personal opinions. It is our personal opinion and the information that we have sourced, and it is in no way medical advice. Okay. So yes, coming back to your question,
So it is okay to be, when a new pandemic strikes and and the virus is a hitherto unknown virus. We are calling this a novel coronavirus. The word novel in there means that we have not encountered this virus in humans before. Okay. So now then we have two options, two roadmaps to follow. So we can go wrong in two ways. Okay. So either we take a very cautious approach, we hold slow things down till we can study the virus so as to decrease the number of casualties, decrease the number of fatalities, decrease the spread of the virus till we learn more about the virus. The most regret that we will have this way is that, economists will tell you that we lost so many points on the GDP and all that is okay. But as a doctor, if you ask a doctor to strategize for any pandemic, he will always prioritize lives over economies. So that is one way to slow things down till you learn more about the virus. But that way you end up regretting about the economy. The other thing is to let normal routine continue and then regret, oh, the virus is too fatal and maybe we should have slowed down a little bit to learn more about the virus before we returned back to routine. Okay. So there is going to be criticism either ways, but I think it is more ethical or more moral to take an approach of the first option. So that is how the entire world has gone about it. So that is how the lockdowns came about. So there was a lot of fear. So fear is not always bad. I would say precautions. Still, we learned more about the virus. Now that we know at least a good amount of information is available about the spread of the virus. So accordingly, say from the information flows from ICMR to governments, and then governments have started opening up the markets back. So we are taking a very measured approach to this, which I personally approve of. That is the right thing to do. So the fear at the start was good, and now that we know a little more about the virus, that fear is supposed to go down a little. Of course, there are a lot of other factors affecting that it's not possible to keep the markets closed beyond a certain time. There are economic considerations, there are human behavioral patterns. You keep listening about the same thing again and again, and the fear is supposed to go down. That is how human psyche is. So the fear at the start was justified. Now we have to take a measured approach, calculated risk at opening up. Dr. Right. Your take on this? Yeah. So I agree with Dr. Daswani. So we all know that COVID-19 is the infectious disease caused by the most recently discovered coronavirus. The new virus and the disease were unknown before the outbreak began in Wuhan, China in December 2019. So it was a new thing the world was facing. And of course, the government at the initial point of time, they were not knowing anything about this new virus. And also there was misinformation within the community. So there was a fear within the people. Of course, fear for their life, fear for their loved ones, fear for the family. They think that it was a non-curable. In fact, the cure rate, if you see, it is more than 80%. The cure rate of this virus is more than 80%. And most of the patient doesn't require any special treatment to overcome this disease. This information is also available on Health Ministry website, Government of India. So one should remember that out of 6 people, 1 progressed towards difficulty in breathing, right? So this is not that much fatal disease. So who are at the stage? The older people, especially those who are already having underlying medical problems like high BP, diabetes, heart problem, any respiratory disease, and also especially the immunocompromised people. So people with high grade fever, cough,
along with difficulty in breathing. Of course, they need medical attention at first point of time. Now, why the cases are increasing? See, when the disease was outbreak, we know that there was no clarity how the disease is spreading. There was much more misinformation. But now, after 3-4 months, many things have been cleared. That okay, the disease spread from the infected object if we go near to that object or touch that, from infected person to another person if the special care is not taken, right? And also from the droplets as well. So COVID-19 spread via objects, infected object and droplets. Moreover, people, I think they are widely educated nowadays because lots of information has been bombarded on the public and they are well informed about the disease as well. Many medicines recently has been launched in the market, right? And people know that people are getting cured, more than 80% cure rate. And after the lockdown has been opened, people has become fearless. Correct. Right? So this has caused the spike in number of cases, and we are the number of cases are increasing day by day. रोज एक क्या बोलते हैं उस हमेशा वो अपना रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है, डिजीज बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है. बट इतना ये पैनिक और जो लोगों के दिल में था वो निकल चुका है इस बारे में. सो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमको न्यू हॉटस्पॉट दिखने मिल सकते हैं और वो रूरल इंडिया में रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है. Okay, great. So there are some good news and bad news. जो आप लोग ने बोला है, जितना मुझे आप लोग की बातों से समझ में आया, fear कम हो रहा है because education मिल रहा है and all those things. But let's address the elephant in the room. और बहुत लोग को नहीं पता है. I was speaking to couple of my friends in Nagpur and family and other people कि अगर कोरोना होता है, हमको लगता है कि नहीं मुझे नहीं होगा, बाकी सबको होगा. और यही सबकी सोच होती है. हम यही सोचते हैं हमेशा, यार मुझे तो नहीं होगा, होगा तो देखेंगे. बट जब मैंने उनसे पूछा क्या करोगे अगर तुमको सिम्टम्स भी दिखते हैं, तो अभी लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है, व्हाट टू डू, वेयर टू गो, हाउ टू गेट टेस्टेड इवन. सो व्हाट इज योर टेक इन, व्हाट शुड वी डू? एंड आई वांट इट इन सिंपल लैंग्वेज, बिकॉज जो देख रहा होगा वो कॉमन मैन है, उसको शायद टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगा. तो आप लोग जितना सिंप्लीफाई कर पाओगे उतना बेटर होगा. लेट्स से नॉर्मल पर्सन है हमारे जैसा, जो नागपुर में रहता है, अपना काम करता है, घर पे बैठा है, परेशान है, बट उसको उसकी फैमिली में अनफॉर्चुनेटली अगर सिम्टम्स होता है, तो प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो बट वी डोंट नो नाउ exactly because no information नहीं, and we are not quoting this information again as Badal said, you know, we will not quote कि यहाँ से इसने बोला है तो ऐसा ही है, but whatever experience आप लोग का है आप शेयर करोगे तो it may help. देखिए ये कंफ्यूजन जनरल पॉपुलेशन में ज्यादातर इसके लिए है क्योंकि ये सिचुएशन डिमांड करता है कि आप लोकल न्यूज ज्यादा एब्जॉर्ब करें और नेशनल मीडिया आपको दिल्ली की, बॉम्बे की या सिर्फ मेट्रोपॉलिटन्स की ए लिस्ट सिटीज की आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है जहां इस वक्त कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है. That is causing panic, anxiety in a lot of people जिनके यहाँ वैसी सिचुएशन है भी नहीं इस वक्त. ठीक है, even I get a lot of calls from our own schoolmates, other patient who लोग बहुत ज्यादा डरे हुए. दूसरा क्या हुआ है कि एक स्टिग्मा एसोसिएट हो गया है ये डिजीज के साथ, है ना. तो आई थिंक that line from you keep hearing on phone calls and in TV and on radio that it is, you know, वो लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी, पर जरा उसका मतलब समझिए. आपको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं. That is like बहुत बार सुना होगा, पर जितना ज्यादा सुनते हैं शायद उसका इम्पोर्टेंस शायद उतना रियलाइज नहीं करते हैं जितने बार सुना है. तो लोकल न्यूज एब्जॉर्ब करिए. नेशनल मीडिया का रोल कम है इस पेंडेमिक में. सभी को अपने आसपास के हॉस्पिटल्स का कहाँ कितने बेड्स अवेलेबल हैं, क्या सिचुएशन है, वो आपको लोकली एब्जॉर्ब रखिए. द अदर थिंग इज दैट व्हाट गवर्नमेंट्स कैन डू इज you know maybe on an app or a website make real time tracking available.
जब कोई नागपुर पर टीवी पर देखता है कि दिल्ली में लोग आईसीयू बेड्स के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भाग रहे हैं, तो एक फियर क्रिएट होता है, वो भी ऐसे गांवों में, बी टायर सिटीज में, सी टायर सिटीज में, जहां पेंडेमिक का अभी बहुत ज्यादा ओवरवेल नहीं हुआ है अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नागपुर में अभी भी वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, आइसोलेशन बेड्स अवेलेबल हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खोला भी है, अनलॉक किया भी है, क्योंकि आप अपने शहर में अभी उतना सिवियरिटी, उतना ज्यादा स्प्रेड नहीं है। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश रहेगी कि आप डरिए मत। देयर इज अ ह्यूज रोल फॉर लोकल रीजनल मीडिया चैनल्स in vernacular languages to convey this and to track real time data कौन से हॉस्पिटल में कहाँ बेड्स खुले हुए हैं। मे बी द गवर्नमेंट्स कैन सपोर्ट दिस इनिशिएटिव। मैं देख रहा था दिल्ली में शायद ऐसा एक ऐप लॉन्च भी हुआ है, दिल्ली कोरोना। आई होप सिमिलर एप्स गेट लॉन्च्ड फॉर एवरी सिटी, एवरी डिस्ट्रिक्ट, जहां अगर किसी को ऐसा ट्रायल एंड एरर वाला नहीं होना चाहिए। किसी को अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ती है आईसीयू बेड की या वेंटिलेटर की, तो ये हॉस्पिटल से लेके वो हॉस्पिटल भागने की जरूरत ना पड़े कि कहाँ खाली मिल जाए। कोई एक प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ रियल टाइम डेटा ट्रैक होता रहे, है ना। सो दैट कैन रिड्यूस द फियर एंड एंजाइटी। दूसरा, स्टिग्मा रिड्यूस करने की जरूरत है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आप एक बार ठीक हो जाते हैं, है ना, तो आप रूटीन लाइफ आपका कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस, आप यंग हो, हेल्दी हो, तो इतना अफेक्ट नहीं होगी। दैट बीइंग सेड, आपको प्रिकॉशंस फिर भी लेने हैं, यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ बोथ स्पेक्ट्रम्स ऑफ द डिजीज। एक ह्यूमन साइकी होता है, जो लोग ब्रेव होते हैं वो लोग थोड़े फूलिश भी होते हैं। एक होता है जो लोग डरते हैं, फिर वो बाहर भी नहीं निकलते। तो इस वक्त आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है, जहां आपको हो सके तो बाहर कम जाना है, जरूरी चीजों के लिए जाना है। पर अगर आपके लोकल मीडिया चैनल से आपको पता पड़ता है उसका आपके यहाँ अगर उतना नहीं फैला हुआ है, तो उतने डरने की जरूरत नहीं है। आपको डिसिप्लिन्ड तरीके से पूरे प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए आप वर्क रिज्यूम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, पर लापरवाही भी नहीं करनी है। आपको दोनों स्पेक्ट्रम पे डिसिप्लिन्ड भी होना है एंड ब्रेव भी होना है। तो देयर इज अ स्मॉल लाइन बिटवीन ब्रेवरी एंड फूलिशनेस। वो फाइन लाइन आप डिफरेंस समझिए, एंड उस लाइन पे आपको चलना है बैलेंस करते हुए। Local media and the balance needs to be maintained. ये take away है। Dr. Ritesh, राइट। शोभिक, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि ग्राउंड लेवल पे इंफॉर्मेशन जीरो है और कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, राइट। दूसरा, जो डॉक्टर बादल दासवानी ने बताया कि पैनिक नहीं होना है लोगों को, ठीक है। तो हमको चीज समझना होगा कि नागपुर के ऊपर, नागपुर के आसपास के जो गांव है विद इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ 30 to 50 किलोमीटर्स, इनका भी भार नागपुर पे ही है। वहाँ के लोग भी बेटर ट्रीटमेंट के लिए नागपुर ही आएंगे। तो हमको ये बात आज भी, हमको स्कूल जमाने से पढ़ाया जाता था कि हमारा इंडिया का पॉपुलेशन मैक्सिमम गांव में रहता है। स्कूल छोड़े हुए 20 साल हो गए, तो वो 75 से एटलीस्ट 65 तक आया वो पॉपुलेशन, यानी कि जो गांव में अभी भी मोर देन 65 पॉपुलेशन रहता है। तो देखिए, गांव में आज भी इंटरनेट का पेनिट्रेशन अगर दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के हिसाब से हम कंपेयर करें तो इंडिया में बहुत कम है। स्मार्टफोन भी गांव में बहुत कम यूज करते हैं। तो ये तो एक होगी ये वाली पॉपुलेशन। दूसरा, जैसे अब मेरे पिताजी है, he doesn't use स्मार्टफोन, he doesn't use इंटरनेट, ठीक है। तो अगर हम ये दोनों पॉपुलेशन, जो गांव की रूरल पॉपुलेशन है और जो अपने सिटी में जो ओल्ड पॉपुलेशन है, जो स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता, तो ऑब्वियसली उसमें इंटरनेट भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉपुलेशन को हम अगर कंबाइन करते हैं तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन बन जाता है जो डिजिटल मीडिया से दूर है। तो आज भी ये लोग इंफॉर्मेशन के लिए किन पे रिलाय करते हैं? जो सुबह न्यूज़पेपर आता है उस पे, टीवी पे, रेडियो पे, राइट। डिजिटल मीडिया पे बहुत इंफॉर्मेशन है, बहुत है,
जो कि आप एसेस कर सकते हैं, मैं एसेस करता हूँ, बादल एसेस कर सकता है, बट हमारे पेरेंट्स जिनको यूज करना नहीं आता स्मार्टफोन वो एसेस नहीं कर सकते। रूरल पॉपुलेशन में पब्लिक एसेस नहीं करते हैं। इनफैक्ट ठीक है, तो है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है, हमको पता ही नहीं कि क्या एक्सेस करना है क्या नहीं करना है। राइट। दूसरा क्या है, अब इसमें मेजर रोल अब कौन प्ले करेगा? हमारे जैसे यंग जनरेशन। फर्स्ट कि यंग जनरेशन को खुद को एजुकेट करना है, ठीक है। दूसरा उसके बाद में अपने फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनको एजुकेट करना है। तीसरा अपने नेबर्स को एजुकेट करना है कोरोना के बारे में, कोरोना के फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रिसोर्सेस जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज भी होंगे और इसमें इकोनॉमिकली बर्डन भी कम आएगा, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर रितेश, नेटवर्क थोड़ा इशू है, शायद आपका कट हो गया, बट एनीवेज मूविंग हेलो, फॉरवर्ड, नाउ इट्स बेटर। आपका नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है, तो एनीवेज इट्स बेटर। मूविंग अहेड, नागपुर की हमने बात की है, डॉक्टर बादल एंड डॉक्टर रितेश दोनों से मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग दोनों जो एक एक करके आंसर कीजिए। नागपुर में अभी क्या प्रोसीजर है? सो किसी को अगर टेस्ट करना है, क्या हॉस्पिटल्स है? मे बी बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट अगर होगा तो हम लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, बट कुछ नेम्स आपके दिमाग में जो है, सो क्या प्रोसीजर है, क्या टेस्ट हो सकता है, नागपुर या पुणे? देखिए, सारे सिटीज की ऑल ओवर इंडिया में लैब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन से हॉस्पिटल्स, कौन से लैब्स को आपको अप्रोच कर सकते हैं, अगर आपको फिजिशियन बताता है तो वो लिस्ट लिंक आपको यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। बट आपको उसमें पूरे इंडिया भर के कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स और लैब्स की लिस्ट मिल जाएगी। बट द थिंग इज, अगर आपको लगता है आपको फीवर है, आपको सिम्टम्स है, तो अगर आप किसी भी वजह से अनवेल हैं, तो आप डायरेक्ट ये लैब्स या हॉस्पिटल्स को अप्रोच मत कीजिए। वो आपका टेस्ट कर नहीं सकते जब तक कि आपके पास आपके लोकल फिजिशियन या किसी और डॉक्टर की, नेबरिंग डॉक्टर की आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि इनका टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपकी तबीयत खराब है, यू अप्रोच द नेबरिंग फिजिशियन और योर फैमिली फिजिशियन। इफ ही फील्स द नीड, अपॉन एलिसिटिंग हिस्ट्री, आपका ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री लेंगे, आपका अगर सिम्टम्स देख के, हिस्ट्री सुन के, अगर उनको लगता है कि आपकी कोविड की जांच होनी चाहिए, तो वो आपको लिख के देंगे। वो पर्चे से ही ये लैब्स या हॉस्पिटल्स में आपका टेस्ट कंडक्ट हो सकता है। ओके, विदाउट रेफरल वो लैब्स या हॉस्पिटल्स टेस्ट नहीं कर रहे हैं कोविड के। दी अदर थिंग इज, आपकी तबीयत अगर ठीक नहीं है तो भी घबराने की कोई बात नहीं। हर फीवर, हर सर्दी जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस से ही, ये कोविड-19 NCOV-19 से हो, ये जरूरी नहीं है कि ये कोरोना वायरस हो। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, स्पेशली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का सीजन होता है सर्दी खांसी का, सो उस वक्त अगर आपको सर्दी खांसी होती है तो घबराए बिना आपके फैमिली फिजिशियन, नेबरिंग फिजिशियन को दिखाएं। अगर उनको फील हुआ तो वो आपको कोरोना के टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे और आपको वो आपका नियरेस्ट लैब या हॉस्पिटल का एड्रेस भी बता देंगे जहां आप ये सारे टेस्ट करवा सकते हैं। हाँ, और एक अच्छी बात, ये टेस्ट इस वक्त गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्री है। गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट्स जो मेडिकल कॉलेज होते हैं हर शहर में, जैसे कि नागपुर में GMC है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, IGMC है, वहां ये टेस्ट इस वक्त फ्री हो रहे हैं। प्राइवेट लैब्स भी डेजिग्नेटेड हैं ये टेस्ट के लिए, गवर्नमेंट ने अप्रूव की है कुछ प्राइवेट लैब्स को ये RT-PCR टेस्ट कोरोना के करने के लिए। उसमें से एक है ध्रुव लैब्स, अभी किंग्स पे भी को भी परमिशन मिल गया है करने के लिए। यहाँ भी गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल किया हुआ है, दैट इज यू आर गोइंग टू बी चार्ज मैक्सिमम आपको 2200 रुपए लगने वाला है पर कोरोना टेस्ट का। ओके, अगर आपके स्वैब, आपको चाहिए कि बाहर नहीं निकलना है, घर से स्वैब कलेक्शन चाहिए, तो उसका 600 रुपीज एक्स्ट्रा अलाउ किया है गवर्नमेंट ने लैब्स को चार्ज करने को। 2800 में आपका घर से स्वैब कलेक्शन हो जाता है। यस रितेश। Yeah. Dr. Ritesh, we have Dr. Abhinav joining in, but I think I can see his face now. Now it's better, yeah. So Dr. Abhinav, hi.
We Hi. just started the conversation. We spoke Yeah, about. sorry I got late. No, that's okay. I can understand you are in the front line, and now you're driving back to another hospital as you Yeah. spoke. So thank you for taking out time while you stopped your It's my car. pleasure. So हम लोग बात कर रहे थे. So we just were talking about नागपुर में कहाँ टेस्ट हो सकता है. We spoke about the fear before, and we got wonderful inputs from both the doctors, and we welcome you as well. So we'll continue the discussion, and yeah. So Definitely. Dr. Ritesh will say his words, and probably then you can add about the Sure. testing that is been there in Nagpur or Pune. Okay. Hello, Dr. Abhinav. Hi, Ritesh. या हाय. तो जैसे डॉक्टर बादल ने बताया है कि जैसे पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं, सो फर्स्ट व्हाट ही कैन डू, ही कैन कॉल हिज फैमिली फिजिशियन. ठीक है, उससे फोन पे बात कर ले. अगर फैमिली फिजिशियन को लगता है कि उसको हॉस्पिटल में या क्लिनिक में बुलाना चाहिए, तो पेशेंट कैन गो टू हिज क्लिनिक. ये तो हो गया एक बात. दूसरा, अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, हाई ग्रेड फीवर है पेशेंट को, कफिंग है और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो डेफिनेटली उसको हॉस्पिटल या फिर अपने फिजिशियन के पास विजिट करना ही चाहिए. तो वहां पे जाके क्या होगा कि वो फिजिशियन उसको स्क्रीन करेगा, या फिर वो हॉस्पिटल में भी विजिट करता है तो उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग होगा. एंड इफ द फिजिशियन थिंक दैट ओके वी हैव टू प्रोसीड विद द कोविड टेस्ट, तो फिर वो उसको कोविड टेस्ट करने के लिए बोलेंगे. तो हॉस्पिटल में हो जाएंगे. इफ द पेशेंट इज गोइंग टू गवर्नमेंट सेटअप, सो ऑब्वियसली वहाँ पे IGMC है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसको हम मियो हॉस्पिटल बोलते हैं. फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है. तो यहाँ पे जाके वो स्क्रीनिंग करके उसके बाद में जो ट्रीटिंग डॉक्टर को लगता है कोविड टेस्ट करना है, तो वहीं की वहीं हो जाएंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे एम्स में मिहान में एम्स है, वहाँ पे भी टेस्टिंग होती है. फिर थोड़े और भी कॉलेजेस और लैब के नेम से मेरे पास, जैसे नागपुर वेटरनरी कॉलेज में इसका सेटअप है कि टेस्ट की जाए. फिर इंटरमीडिएट रेफरेंस लैब है. नीरी में भी मैंने सुना है कि वहाँ पे कलेक्शन पॉइंट है, टेस्टिंग नहीं होता है वहाँ पे, कलेक्शन होके फिर वो टेस्ट के लिए फर्दर सैंपल सेंड करते हैं. जैसे डॉक्टर बादल ने ऑलरेडी बताया, ध्रुव पैथ लैब है जो कि रामदासपेट में है. डागा चाइल्ड एंड वुमेन हॉस्पिटल, यहाँ पे भी कलेक्शन होता है. क्लिनिक स्पेशलिटी जो कि लता मंगेशकर का यूनिट है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी होता है. एक सुविश्वास डायग्नोस्टिक लैब है रामदासपेट में, वहाँ पे भी होता है. और किंग्स हॉस्पिटल में वहाँ पे कलेक्शन और टेस्टिंग दोनों होता है. पूना की भी ऐसी सेम लिस्ट आपको लिंक पे मिल जाएगी, पूना की भी. तो ये सारे टेस्टिंग सेंटर्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं अक्रॉस सिटीज, अक्रॉस डिफरेंट एरियाज एंड ऑल ओवर इंडिया. ऐसा है. So one more question, Dr. Abhinav, you can answer this as well. बहुत सारे लोग ने ऐसा बोला है कि when we approach our physician, so easily test को recommend नहीं किया जाता है कई बार, मतलब symptoms test करने के बाद. You guys are the best person to take decisions because you know the history, and mostly हम लोग family doctors के पास ही जाते हैं. जी. ऐसा कुछ मीडिया में हमने सुना है, न्यूज में. तो why is this case like? See, basically every city has a different protocol. In Nagpur, what the protocol is right now is any patient who has these symptoms, they have to be referred to medical college, either IGMC or GMC. You can go and visit a private hospital. Almost all private hospitals, like including mine, has an isolation setup where we can keep these patients who are suspected of COVID, and we need to call the NMC people. They come, they take the swab from these patients, and then the report comes. If the report comes positive, then they are referred to the concerned hospital. It's like that. So if you have these symptoms, you can go to a private hospital, but make sure they have such setups so that they can keep these patients there. Maybe you said some very interesting thing is that बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होते हैं जैसे आइसोलेशन वार्ड्स जहाँ पे है, people can go there, get their check done, NMC can come and take the swab. They come there directly, and they don't have to run around anywhere. They can come there, they get the test, and it's free of cost because NMC is doing it themselves. And if by chance they come positive, then they are referred to the concerned hospital. Right now, private hospitals are not authorized right now. They are in the process of taking over, but they are still not taking over because a lot of beds are still vacant in our in Nagpur. I'm talking about only Nagpur for now. And if you are coming from a containment zone, you are from a containment zone, the NMC has specifically given directions that these people are directly supposed to go to IGMC and GMC for the treatment. Okay.
So without wasting time and without moving around in so many hospitals, they can directly go there and get a hassle-free treatment. So now all three of you, this quick question that I'll throw is that about cost. You know, there's a lot of hoopla around that. यार मुझे कोरोना होगा तो बहुत पैसे लग जाएंगे. पता नहीं मेरा इंश्योरेंस कवर होगा कि नहीं. And media also, you know, sometimes balloon the information out about the high cost being charged, exorbitantly priced. So what's your take on this? Like, how is the situation in Nagpur? मुझे अपना नागपुर का पता चले. So now जैसे नागपुर में अभी भी the treatment is being done only in government hospitals, and it's absolutely free of cost. Whatever medicines, whatever it is, everything is being borne by the government, including the food. So I don't think so there is any issue of cost in this field. In case the cases increase above probably 3,000, 4,000 to that extent, then probably they'll think about shifting into private hospitals where the capping has already been done by the central government. So now it's like for the isolation bed, the new rates which are there, it's like it's between 8,000 to 10,000 rupees per day. It includes everything, the PPE, the medicines and everything. If the patient is in ICU, then it's between 13,000 to 15,000. And with ventilator, it's between 15 to 18,000. So this capping has already been done, and I don't think so anyone can be charged more than that. So what's your take, Dr. Badal and Nitesh? I think in Pune they have already in Mumbai metropolitan region and Pune, the government has already taken over 80% of the capacity in private hospitals as well, because यहाँ पर spread of disease ज़्यादा है, so they were close to a tipping point वहाँ जहाँ government beds, ICU beds और ventilators खत्म हो रहे थे, so they have taken over the private hospitals as well. और private hospitals में भी अब recently इसकी capping कर दी गई है, तो don't believe from now on you need not worry about the cost, especially if you have insurance. Government में तो जैसे अभिनव ने बताया free है, private में भी इसको capping कर दी गई है. But yes, I would again like to add, if you have still not had health insurance or life insurance, that is the single most important advice I can give you, that please buy health insurance and life insurance, which will also help you to avail of COVID care in private hospitals. Almost all insurance companies are covering COVID now in their costs, so it's not a bigger worry now. The only thing is the expenditure, which is like the PPEs, the disposables which are used every day. Probably they are not covering that for now, but I think so the government is also asking them to cover this, including this in their treatment protocol. So maybe insurance companies will add this thing also in future. Yeah, most of the insurance company, they are contacting their customers and informing about the COVID insurance as well. So जिनका insurance sum कम है, तो company are informing them to pay just a little amount and get COVID cover as well. So maximum insurance companies cover कर रहा है COVID को. And जैसे कि already नागपुर में GMC, IGMC में हमारे कैपेसिटी काफी बढ़ा दिए है जो NMC एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने, तो अभी फिर भी प्राइवेट हॉस्पिटल स्टैंड बाय पे है और काफी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है नागपुर में as part as COVID is concerned. Since you said insurance, quick question. I know all being doctors are not from insurance background, but what is the typical cost which is being borne in Nagpur? And so from a typical doctor's perspective, what is your suggestions? Because neither of us come from insurance domain, and we all have our representatives from the insurance background. What would you suggest? Like, what should be the amount that someone should secure or get a top up done? देखिए नागपुर में तो so far private hospitals have not been told to admit COVID positive जो आ गए हैं, they have to be compulsory, जिनका result positive आ गया है, they have to be compulsorily treated in government institutions. So नागपुर का I cannot tell you how the insurance claim experience has been, but the their regulatory body, the insurance regulatory body, did a small study, sample study in Gurugram, where they found that a lot of people, after exhausting the government capacity, when they were approaching the private hospitals, after the government facilities had been exhausted, so they did this study that private hospitals को treatment के बाद जो bill आ रहा था,
वो भी इंश्योरेंस में 50-60% कवर हो रहा था, क्योंकि एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डिड नॉट कवर द कॉस्ट फॉर overhead consumables. So this is what I read about, that industry experts were saying that previous policies में overhead consumables hospitals का cover नहीं होता था, which was mostly PPEs, and this is amounting to like anywhere between 20 to 40% of the total hospital bill. So if it ran in lakhs, say 50% of the cost was being borne from the patient's pocket. Now their regulatory authority, the insurance regulatory authority, IRDI, has told the insurance companies to come up with new policies, to come change their existing, to redraft their policies by July 15 to cover the cost of PPE kits as well. So hopefully in a few weeks ये भी कवर हो जाएगा. देखिए शोभिक, इनिशियली कब हुआ था, जब ये कोरोना का उस टाइम पीपीई का स्कार्सिटी यानी उतना मार्केट में अवेलेबल नहीं था, वी नीड टू इंपोर्ट, राइट. तो उसके कारण कॉस्टिंग बढ़ गया, फिर बहुत कम वेंटिलेटर्स कम थे, दैट हैज बीन इंपोर्टेड. सो इन द इनिशियल डेज यू मस्ट हैव सीन दैट द पेशेंट वे चार्ज अ बिट, बट अभी यूनिफॉर्म हो चुका है सभी जगह, कैपिंग आ गया है गवर्नमेंट का, पीपी हमारे इंडिया में ही बन रहे, इनफैक्ट सरप्लस बन रहे, अभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं पीपीस को. तो ये सब चीजों को देखते हुए कॉस्टिंग भी कम हुआ है, और एक IRDA ने अभी इंश्योरेंस कंपनी को भी एक कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है कि ये अपने इंश्योरेंस में कवर करिए, और इसका कुछ मींस उसका एक सोल्यूशन उन्होंने मांगा हुआ है. Correct. So Dr. Badal also mentioned the same thing. So we hopefully by 15th of July we may see more. So Dr. Abhinav, Dr. Badal and Dr. Ritesh, one more thing, one very important question about the tipping point. You know, people talk about the typical tipping point कब होगा. I know India में बहुत number अगर holistically अगर हम देखें तो बहुत बड़ा है. But अगर initial discussion में भी हमने ये बोला है कि local, we started the discussion, you know, विद लोकल में कुछ डिफरेंट हो रहा है, बट मेजर बड़ा सिटीज में ये नंबर है. सो नागपुर की अगर बात करें, व्हाट इज द टिपिंग पॉइंट वेयर इन द केसेस लाइक 3000, 5000, 7000 अगर होता है तो क्या कैपेसिटी हम हो सकता है, या हमारी तरफ से हमने क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? व्हाट्स योर टेक? Right now the number of active cases in Nagpur is roughly around 350. Okay. And the hospital bed capacity which is there available right now is around 2500 to 3000. So there is still quite a lot of time before we can think about this thing. Plus they are adding a few more bed capacity, including the ICUs and ventilators, as well as they are planning a 1000 bed hospital itself in Nagpur, one more hospital itself. So tipping point in Nagpur, it's very difficult to say whether by that time maybe hopefully the corona pandemic will reduce and it shouldn't come in Nagpur. That's good to hear. Yeah. One more point I missed mentioning in your answer to your previous question is charges इतने ज़्यादा क्यों हैं? So जब patients treatment seek कर रहे हैं या आपस में comparison कर रहे हैं या किसी और को बता रहे हैं, so they need to keep in mind that the single biggest factor that is going to be deciding the cost of treatment is the severity of disease in the patient. अगर किसी patient को ventilator की जरूरत पड़ रही है, यानी डिटोरियरेट होके वो वेंटिलेटर तक आ रहे हैं और एक्सटेंडेड हॉस्पिटल स्टे है, तो ऑफ कोर्स उनका कॉस्ट उस पेशेंट से बहुत ज्यादा होगा जिसको सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स आके आइसोलेशन होके डिस्चार्ज हो गए, या उस पेशेंट से भी वेंटिलेटर वाले पेशेंट का चार्जेस उस पेशेंट से भी ज्यादा होगा जिनको सिर्फ ऑक्सीजन देके आईसीयू बेड पे डिस्चार्ज हो. तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आपको सिर्फ आइसोलेशन होके माइल्ड सिम्टम्स आके आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो फिर आपके रिलेटिवली चार्जेस कम रहेंगे. अगर आपको आईसीयू बेड की जरूरत पड़ती है तो थोड़े ज्यादा रहेंगे. जैसे अभिनव ने आपको स्टार्टिंग में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी कैपिंग का चार्जेस बता दिया, और आईसीयू बेड के साथ आपको वेंटिलेटर भी लगता है तो उसके चार्जेस अलग है, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैप हो चुके हैं. और अगर उसके साथ आपका इंश्योरेंस है तो फिर आपको और भी डरने की जरूरत नहीं है. हालांकि ये सिचुएशन अभी इस वक्त वहां भी अभी नागपुर नहीं पहुंचा है. ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, थाने, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, नासिक और पुणे में गवर्नमेंट ने 80% प्राइवेट हॉस्पिटल्स का
रेगुलेट करना स्टार्ट किया है, उसमें से उन्होंने 50% बेड्स कोरोना के लिए रिजर्व किए हुए। सो कमिंग टू योर प्रेजेंट क्वेश्चन व्हिच वाज tipping point. टिपिंग पॉइंट। टिपिंग पॉइंट, लाइक अभिनव से नागपुर काफी दूर है अभी टिपिंग पॉइंट से, एंड इट्स अहेड ऑफ द कर्व से बाय प्रिपरेशन बहुत एडवांस में चल रही है, स्प्रेड बहुत अच्छा कंट्रोल किया गया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, और अहेड ऑफ द कर्व चल रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी आइसोलेशन बेड्स और की तैयारी हो चुकी है, मैंने इन प्रोसेस है नागपुर में more than a couple of thousand beds, and a 5,000 bedded dedicated COVID hospital is also coming up, I think, which apart from the 1,000 that Dr. Abhinav said, because he said 1,000 bed ka capacity ka aa raha hai, and That is the COVID care center he's talking about. This will be a proper hospital, 1,000 bed hospital. Yeah. okay, so 1,000 Yes. is a hospital and that's a COVID care This is center. the COVID care center. Yeah. yes, and अभी तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी वहां तक भी नहीं पहुंचे हैं, तो नागपुर की कैपेसिटी है और एब्जॉर्ब करने की। टिपिंग पॉइंट शायद नागपुर में विंटर्स तक भी ना आए। बाय टिपिंग पॉइंट व्हाट वी मीन हियर इज दैट आपको हॉस्पिटल की जरूरत हो, आईसीयू बेड, ऑक्सीजन की या वेंटिलेटर की जरूरत हो, और आपको बेड ना मिल रहा हो, दैट इज व्हाट आई थिंक शोभिक मीन्स बाय टिपिंग पॉइंट। तो आई थिंक वो नागपुर शायद ये विंटर सीजन भी बिना टिपिंग पॉइंट के निकाल सकता है। डिपेंड्स ऑन, ऑफ कोर्स दिस सिचुएशन इज अगेन वेरी डायनामिक, डिपेंड्स ऑन द स्प्रेड ऑफ डिजीज। फिलहाल जो स्प्रेड है, जो रेट ऑफ स्प्रेड है नागपुर में, उस हिसाब से नागपुर इज वेरी वेल प्रिपेयर्ड। ऑफ कोर्स डेफिनेटली पूना में दैट टिपिंग पॉइंट मस्ट हैव बीन वेरी क्लोज, दैट इज व्हाई द अथॉरिटीज डिसाइडेड टू टेक ओवर 80% capacity of the private hospitals as well. राइट। शोभिक, एज फार एज नागपुर इज कंसर्न, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है नागपुर में। जैसे जीएमसी में अपग्रेड किए हैं वार्ड्स को, आईजीएमसी में अपग्रेड किया। आप आईजीएमसी के बाहर ही जाएंगे तो दिख जाएगा, काफी अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है और काफी एडवांस बनाया हुआ है। जैसे डॉक्टर अभिमन्यु ने बताया कि एक 1000 बेडेड हॉस्पिटल भी आ रहा है। मुझे लग रहा है वो डागा के अंदर ही बिल्डअप कर रहे हैं हॉस्पिटल, एक डागा में, राइट। डागा में कंस्ट्रक्शन चालू है हॉस्पिटल का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है, नागपुर के पास में, इफ यू ड्राइव फ्रॉम नागपुर फॉर 15-20 मिनट्स, फेटरी करके एक छोटा सा विलेज है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वारंटाइन सेंटर, जो कि कहते हैं कि सेंटर इंडिया का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर वहाँ पे बिल्डअप हुआ है, विद सम सोशल एजेंसी एज वेल, विद द हेल्प ऑफ सम सोशल एजेंसी। तो वहाँ पे 5000 पेशेंट्स का एक क्वारंटाइन सेंटर भी बिल्डअप हुआ है। तो नागपुर में काफी अच्छा काम हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में, काफी। और जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स थे, जैसे इंदिरा गांधी एक शंकर नगर के पास में एक हॉस्पिटल है, फिर आइसोलेशन हॉस्पिटल है, काफी छोटा हॉस्पिटल, पीएससी लेवल का हॉस्पिटल था, वहाँ पे भी उन्होंने बेड्स बनाए हुए हैं, इमरजेंसी बेड्स। ये आता है मेडिकल से, आप इमामवाड़ा की तरफ जाते हैं, वहाँ पे एक काफी छोटा सा हॉस्पिटल है, उसको काफी अच्छा डेवलप किया है उन्होंने। Great. So good news is that Nagpur is still far away from the situation, and we hope that things get better. I know all of you are short on time. One last question, all three of you, I want you to answer, is that to your friends, family, and people in Nagpur, या anywhere, whoever is watching this, आप क्या टिप देना चाहोगे? See, एक होता है अब मुझे पता है कि ये कोरोना है, and I have to live, this is the new normal, I have to go to buy groceries, I have to go to work, because people have to get food on the table. So as a doctors, one by one, maybe we'll start with Dr. Abhinav, and आप क्या सजेस्ट करते हो, 1, 2 या 3 टिप्स, whatever, even is good, कि क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए? एज अ डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करोगे? First of all, see, there is no actual treatment. It's a symptomatic treatment for now. So basically, the only thing which can prevent it is maintaining a social distance. So you need to maintain that. You need to wear mask, a proper mask, and avoid places where a lot of crowd can be there. Okay, so you need to do that. Second thing is stop stigmatizing this disease. It is not a stigma. Okay, if there is someone who is COVID positive, he is bound to recover and he is gonna be all right, and he has to be socially acceptable. So you need to accept these people and don't stigmatize this disease as such, and plus maintain that awareness. Okay, and you don't have need to panic.
Don't maintain that fear which they had when it's just started. You just need to have that complete awareness about this situation, and it will be fine. Great. So, stigmatizing, is it that big a problem? Because Dr. Badal also spoke initially about, people are stigmatizing the entire thing. Yeah, it is not that much right now, but it was there to some extent in like a couple of months before. Great. We need to embrace this change now. Yeah, yeah. Yeah, Dr. Badal, what's your take? Final take before we end this call. Like Abhinav said, don't panic. Like my good friend Dr. Abhinav said, panic reduces stress. सबसे पहले तो आप ये समझ, panic will cause your immunity to reduce. Stress reduces your immunity. So सबसे पहले maintain a healthy diet. बहुत ज़्यादा national media मत देखिए. See, only depressing news makes for good headlines. So बहुत ज्यादा नेशनल मीडिया मत देखिए, आपका लोकल रीजनल मीडिया से ज्यादा अपडेट रहिए लोकल न्यूज के बारे में, एंड मेंटेन अ हेल्दी डाइट, do some physical exercises, and what more you could do is, there is this simple device. Now this I have become a fan of this, you know. अगर आप कोविड पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो whether your condition will worsen or not, you can simply get to know. वैसे तो आप हॉस्पिटल केयर में ही रहेंगे, बट अगर आपकी लार्ज फैमिली है, आपके फैमिली में डायबिटिक्स हैं, एल्डर्स हैं, हाई रिस्क पेशेंट या कोई भी और कोमॉर्बिडिटीज वाले आपके घर में एल्डर्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ पल्स ऑक्सीमीटर. बहुत सिंपल डिवाइस है. This should become, now after the pandemic, this should become as common as, you know, BP apparatus, blood pressure measuring apparatus जो होते हैं, डिजिटल apparatus घरों में, या डायबिटिक लोग धीरे धीरे खुद अपना ब्लड शुगर लेवल मेजर करना सीख जाते हैं घर पे, तो वो हैंडी डिवाइसेस आते हैं. ये भी वैसा ही एक डिवाइस है, समझिए न्यू डिवाइस है बट कॉमन हो सकता है, और यूज करने में उन ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस या apparatus, स्पिग्मोमेनोमीटर और ग्लूकोमीटर से भी बहुत ज्यादा सिंपल. आप इसको सिर्फ अपने इंडेक्स फिंगर में लगाते हैं, एक बटन होती है, इसको ऑन करते हैं, इसमें 2 रीडिंग्स आती है. आई डोंट नो इफ यू कैन जूम इन और नॉट. तो इसमें 2 रीडिंग्स आती है. एक होती है SpO2, एक आता है पल्स रेट, आपका पल्स यानी नब्ज की तेजी. तो अगर आपका SpO2 94-95% से ऊपर है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. अगर आपका SpO2 किसी भी कारणवश 90 से नीचे जाता है तो even if you don't have symptoms, you should immediately consult your family physician even if you are not showing symptoms. ये और बात है कि आपका रीडिंग कम आता है तो it doesn't always mean कोरोना, और आप नॉर्मल है तो भी जरूरी नहीं है कि आप कोरोना नेगेटिव हैं. तो रीडिंग को इंटरप्रेट करना आप फैमिली फिजिशियन के ऊपर छोड़ दीजिए, पर आपका रीडिंग कम आता है तो जरूरी है कि आप फैमिली फिजिशियन को दिखाएं. लार्ज फैमिली है, जॉइंट फैमिलीज है, या आप हॉस्टल्स में कुछ स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं जो अब तक वापस नहीं गए हों, तो एक डिवाइस परचेज कर लेना भी आप लोगों के बीच में इनफ है. एंड इट इज अ वेरी चीप, रिलेटिवली नॉट वेरी एक्सपेंसिव. 1500 के अराउंड इसका कॉस्टिंग आता है. आप दिन में 1 बार भी 2 बार भी इसको चेक कर लेते हैं, काफी हो जाता है. दैट इज इफ आपको ऑलरेडी अनवेल फील हो रहा है. Okay. So I have heard about this pulse oximeter before as well, and I am an actually patient of obstructive sleep apnea. You know, few years back, almost 5 years before, I got myself operated, but thoda sa I'm much better. मतलब अभी नहीं है मुझे fortunately. So I know this is not the question you are giving the final thoughts, but एकदम से मुझे क्लिक हुआ तो मैं आप लोग से पूछता हूँ, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, अगर कोई पेशेंट है ऐसा, तो उनको क्या डरने का कुछ जरूरत है, या कैसा, क्या कुछ एक्स्ट्रा रिस्क है, या आई डोंट नो, आई मीन व्हाट्स योर टेक? कोई पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लंग डिसऑर्डर्स रहे, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज रहते हैं, या जिनको स्मोकिंग की आदत होती है, किसी
कोई लंग डिसऑर्डर्स, प्री एग्जिस्टिंग लंग डिसऑर्डर्स में SpO2 का लेवल आपका नॉर्मली कम आ सकता है अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज है तो उस बिना कोरोना होते हुए भी आपका SpO2 रीडिंग कम आ सकता है. बट लीव इंटरप्रिटेशन टू द रीडिंग टू योर फैमिली फिजिशियन. अगर आपका रीडिंग कम आता है, ही माइट लुक फॉर अदर कॉजेस अपार्ट फ्रॉम कोरोना एज वेल कि क्यों कम हो रहा है. और इफ ही फाइंड्स द सिम्टम्स ऑफ कोरोना, ही माइट एडवाइज यू टू गो फॉर कोरोना टेस्ट. तो पर ये पल्स ऑक्सीमीटर बहुत काम की चीज हो सकती है, स्पेशली जो ऑफिसेस के एंट्रेंसेस हैं जहां पर बहुत सारे लोग एक जगह काम करने आ रहे हैं, या मॉल्स या हॉस्पिटल सेटिंग्स में एंट्रेंसेस पर, जहां तुरंत में यानी विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपको इमरजेंसी कंसल्टेशन की जरूरत है कि नहीं, तुरंत में आपको इससे पता पड़ सकता है. Link also, although this is not a sponsored video, but we'll give the link of this pulse oximeter in the video as well. So Dr. Ritesh, final take and then we'll close because time we have short. Yeah, so Shobik, this disease has economic and health issues, right? ये हमारे ऊपर एक economic burden भी डालता है. तो हमें करना क्या है, देखिए पीपल बहुत मिस इन्फॉर्म्ड है और हमारे यहाँ पे मेडिसिन भी ओवर द काउंटर मिल जाता है. हर फ्लू का इलाज एंटीबायोटिक नहीं है. पहले तो ये लोगों ने अपने दिमाग में डालना चाहिए कि सभी फ्लू का इलाज एंटीबायोटिक से नहीं होता है. वो अपने आप आता है, अपने आप ठीक हो जाता है. एक पैरासिटामोल ले लीजिए, ठीक है. तो आप फालतू की एंटीबायोटिक मत खरीदिए. उससे क्या होता है कि आप अपने पैसा खर्च कर रहे हैं. एक वायरल फीवर अपने आप ठीक हो जाता है. दूसरा क्या है कि पीपल बहुत ज्यादा पैनिक है. किसी दूसरे तीसरे को तो नहीं है, मेरे फैमिली में तो किसी को नहीं हो जाएगा, राइट. सिंपल वेज है, जैसे कि ऑलरेडी एक सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, हैंड वॉश, ये सबको ही पता है. बट और एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि एक स्प्रे बॉटल ले लीजिए, उसमें डेटॉल और थोड़ा पानी मिला लीजिए. तो क्या होता है, जो डोर हैंडल्स है, राइट, और कॉमन घर में जो कॉमन चीजें यूज होती है, जैसे टेबल में सब लोग बैठते हैं, उसको डेली सुबह शाम एक बार वाइप करिए, वो भी सैनिटाइज हो जाएगा. चलिए डेटॉल नहीं तो एक सोडियम हाइपोक्लोराइड करके सोल्यूशन आता है, वो यूज करिए, वो काफी यूजफुल है, ठीक है. तो जो भी घर में कॉमन चीजें यूज करते हैं, सेम टेबल, स्टडी टेबल हो गया या फिर अपना डाइनिंग टेबल हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, इन सब चीजों को आप एक पोंछ सकते हैं दिन में एक बार 2 बार. दूसरा क्या है, इसमें क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना है, खुद के बॉडी को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखना है. तीसरा, आपको इम्यूनिटी भी बढ़ानी है, तो जो सिट्रस जूसेस है विटामिन सी के साथ वाले, वो आपको डेली नहीं तो 1-2 दिन में आपको सेवन करते रहना है, या फिर विटामिन सी की गोली भी आती है. ये तो हो गई ये चीजें. तीसरा क्या है कि हमको जो पेशेंट्स है उनसे काफी बहुत पोलाइटली, या फिर जिसको कोविड हो चुका है, जैसे कि सोशल स्टिग्मा की बात हुई है, उसको हुआ है वो ठीक भी हो जाएगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि वो कभी ठीक नहीं होगा. तो जिनको हो चुका है उनसे हमको काफी अच्छे से बात करनी है, ठीक है, काइंडली बात करने की है, और अपने को फैक्ट स्प्रेड करने का है, ठीक है. अगर हम सोशल स्टिग्मा ये कम्युनिटी में ये फैलेंगे कि ये सोशल स्टिग्मा है, कोविड इज अ सोशल स्टिग्मा, तो क्या है, जिसको सिम्टम्स आ रहे वो हेल्थ केयर में जाएंगा नहीं. इसके कारण एक भय का वातावरण उसमें फैल जाएंगे कि मेरे को भी बॉयकॉट कर देंगे सोसाइटी से. तो ये सब चीजें हम सबको अवॉइड करने की है, राइट. तीसरा मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, जैसे कि इंश्योरेंस का एक बात हुआ था. तो आजकल क्या है कि मार्केट भी बहुत ज्यादा डाउन है, उतना ज्यादा करेक्ट हुआ नहीं है. तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसमें कोविड मिल रहा है, सो पीपल कैन गो फॉर दैट आल्सो. तो इसमें क्या है, आपकी वेल्थ भी बची रहेंगी और हेल्थ भी कवर हो जाएगा. So great. Thank you, the doctors, all of you, Dr. Abhinav, Dr. Badal, and Dr. Ritesh, for sparing time on this. Thank you, Shobik. Thank you. शोभिक, और एक बात मेरे को ऐड करने की है कि पब्लिक ने कहीं पे भी स्पीटिंग नहीं करने की है. ये बहुत खराब आदत है हमारे पॉपुलेशन में. कहीं पे भी थूकना नहीं, ये अवॉइड करना है स्पेशली. Correct. Great.
So with all those inputs, thank you all of you. The only objective of this video was to create information to our near and dear ones. So thank you so much, all of you. Take care, stay healthy, stay safe. Thanks, Shobhit.